Sign this application. What is this? Why are you lying? It's not good to lie. I am lying because I don't want you to come to my school and attend the parents teachers meeting. But why? Why don't you want me to come to your school to attend parents teachers meeting? Because you don't know how to speak proper English. You make a lot of mistakes and everyone laughs at you and as well as at me. I feel embarrassed. My friends make fun of me for months. So I wrote in this letter that you are not keeping well and you will not be able to attend a parents teachers meeting. Okay. English is not rocket science. I know grammar. I have a rich vocabulary. But whenever I speak, I make mistake. I will improve myself. I know there is no magic. There is no trick. Practice will help me. My principal wants to meet you. I got very less marks in maths. But her English is excellent. Try to manage somehow. Okay. Good morning, ma'am. Good morning, Mr. Kumar. Why don't you go outside for a while? Okay, ma'am. We are extremely sorry, but your son is not performing well in mathematics. You will have to take his responsibility, otherwise we will not be able to promote him to next class. You will have to carry the can. I totally agree, ma'am. But just for clarity, I am playing devil's advocate. He got 95% marks in English. He got 97% marks in science. 96% marks in Hindi. Why he is not doing well in math? We will have to think. He is just a 13-year-old boy. Why are we putting so much pressure on him? He is too young to cope with it. Child is just like soft clay. Can't we give them a little freedom? Can't we give them a little space? If we give them a little freedom and space, it will bring sense of responsibility. Think about it, ma'am. Okay. You should work hard. Your father is a wonderful person. We are promoting you to your next class, but you will have to work hard and get good marks in mathematics. Promise me. Sure, ma'am. I am on cloud 9. My principal was praising you. Please forgive me. I will work hard and I am sorry. It's okay. तो अब समय है क्वेश्चन आंसर का. कैरी द कैन. कैरी द कैन का क्या मतलब है? जी हाँ, कैरी द कैन का मतलब है किसी भी गलती या गड़बड़ी की जिम्मेवारी लेना. इसका प्रयोग हम कई तरह की स्थितियों में कर सकते हैं, जैसे यू कांट रन अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू मस्ट कैरी द कैन. आप अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकते, आपको इसकी जिम्मेवारी लेनी ही होगी. तो याद रखिए, कैरी द कैन. आप कह सकते हैं यू विल हैव टू कैरी द कैन, यू मस्ट कैरी द कैन. आई एम ऑन क्लाउड 9. यह बहुत ही उपयोगी वाक्य है. इसका इस्तेमाल आप कई तरह की स्थितियों में कर सकते हैं. जब आप किसी बात पर बहुत खुश हों, आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिली हो, तो आप कह सकते हैं आई एम ऑन क्लाउड 9. मतलब हिंदी में हम लोग कहते हैं ना कि खुशी से फूला न समाना. इस तरह की भावना को इंग्लिश में व्यक्त करने के लिए हम कहते हैं आई एम ऑन क्लाउड 9. यदि कोई शख्स बहुत ज़्यादा खुश है तो उसकी खुशी को दर्शाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे विराट एंड अनुष्का आर ऑन क्लाउड 9. विराट और अनुष्का बेहद खुश हैं, या विराट और अनुष्का खुशी से झूम उठे हैं, फूले नहीं समा रहे हैं. डेविल्स एडवोकेट.
डेविल्स एडवोकेट का इस्तेमाल आप कई तरह से कर सकते हैं, कई तरह की स्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डेविल्स एडवोकेट का मतलब है कि यह जानते हुए भी कि कोई चीज़ या कोई पक्ष सही नहीं है, उसके पक्ष में बोलना ताकि चीज़ें स्पष्ट हो सके, किसी चीज़ से जुड़ी सारी बातें खुलकर सामने आ सके। जैसे आप कह सकते हैं, आई माई सेल्फ डिड नॉट अग्री with what I was speaking in the debate. I was just playing devil's advocate. I myself did not agree with what I was speaking in the debate. I was just playing devil's advocate. बहस में जो मैं बोल रहा था उससे मैं खुद सहमत नहीं हूँ, पर मैं सिर्फ बहस को आगे बढ़ाने के लिए और मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए वह सब बोल रहा था। आपको याद होगा स्कूल में हम ऐसा करते थे कि एक ग्रुप किसी मुद्दे के पक्ष में बोलता था और दूसरा विपक्ष में। ऐसे में अगर कोई आपसे पूछे कि यह तो गलत तर्क है, आप ऐसा क्यों बोल रहे थे, तो आप कह सकते हैं कि आई वॉज जस्ट प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट। कोप विथ ही इज टू यंग टू कोप विथ। वह अभी बहुत छोटा है इन चीज़ों का सामना करने के लिए, वह अभी तैयार नहीं है। कोप विथ का मतलब है कि सामना करना। आई कांट कोप विथ इट, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। आई कांट कोप विथ द वर्ल्ड एनी मोर, मैं इस दुनिया को अब और नहीं झेल सकता। शी कुड नॉट कोप विथ द स्ट्रेस ऑफ हर जॉब, वह अपने जॉब के तनाव को झेल नहीं सकी। ही कुड नॉट कोप विथ द हैवी वर्क लोड, काम के भारी दबाव को वह झेल नहीं सका। कैन ही कोप विद द स्ट्रेस, क्या वह यह तनाव झेलने में सक्षम है? इसका जवाब आप यूँ दे सकते हैं, इट्स टू अर्ली टू से, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ का मतलब है छुटकारा पाना। इसका तो इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है। इन ऑर्डर टू get rid of the problem, we need to speak to her. In order to get rid of the problem, we need to speak to her. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमें उससे बात करनी पड़ेगी। In order to get rid of the problem, we need to speak to her. I want to get rid of it. मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। I want to get rid of ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, मैं ध्यान भटकाने वाली हर तरह की चीज़ों से छुटकारा पाना चाहता हूँ। हाउ टू गेट रिड ऑफ अ हेडेक विदाउट मेडिकेशन, बिना दवा खाए सिर दर्द से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। हाउ टू गेट रिड ऑफ ए हेडेक विदाउट मेडिकेशन। नॉट कीपिंग वेल, तबीयत अच्छी न होना, स्वास्थ्य अच्छा न होना। He has been not keeping well lately. He has been not keeping well lately. आजकल उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, आजकल उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। He has been not keeping well lately. तो बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।